Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. In the first phase of the lecture, we discussed the rounds of the DIS algorithms. So there are total 16 rounds in DIS. So let's see what is happening inside each round. And let's see this. So this is a single round of the DIS algorithm. So what is happening with this? That while entering a data into N and considering I is equal to uh, 0. I equal to 0. So what is happening with this? It will be D minus 1, I minus 1. Clear? Yes. It will become this one. So we term it a pre-round. What do you mean by a pre-round? When the rounds are not started. Because round 0 doesn't exist. Yes, sir. Start. Clear? So it means that we are talking about above. Clear? Yes, sir. So when it is done and I becomes equal to 1, Yes. yani the data will enter into round number 1. So I will equal to 1, 1, 1, 1 and 1. So it then will become 0. Means this part. Now I equals 1. It will be K1. Clear? Yes. It will be L1, R1, C1, D1. So input to R1 is from the very beginning. Means no round, 0 round. Yes. Clear? So 0 round means the initial permutation over here. Yes, sir. Sorry, permutation choice 1 over here and initial permutation over here. Yes, sir. That is. Now, when it is given to round number 1, it is divided into C and D. The key is divided into 2 parts, Yes. left side C and right side D. Similarly, the input 64 bit is divided into 2 parts, left 32 bits and right 32 bits. Clear? So here we apply the left shift and apply the left shift, mean the left circular shifts. अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, हमने सर्कुलर शिफ्ट की डिस्कशन वहां पर की. ठीक? It is applied on it upon R1, which is 32 bit, which is 32 bit. It is given to the expansion permutation table or E table. So this side is smaller and this is greater. Means हम कंप्रेशन करते हैं ना, एक एक्सपेंशन होती है. कंप्रेशन में हम डेटा को कंप्रेस करते हैं, एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, डेटा को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं. आप लोगों ने सुना भी होगा कि आजकल मतलब ये टेक्नोलॉजी आई हुई है कि अगर एक क्राउड है, ठीक है, और उधर 500 बंदे हैं, तो आपने उसको डबल ट्रिपल और 4 टाइम्स कैसे शो करना है. ठीक है ना. तो वो तो खैर पॉलिटिकल बात है, लेकिन यहाँ पर हम इसको दूसरे एंगल से लेते हैं. ठीक है. सो a 32 bits data is expanded to 48 bits. Clear? Over here the 28 bit and 28 bits, so total 56 bits. Total
56. It is compressed to 48 bits. It is compressed to 48 bits. So looking over here, the XOR operation or exclusive OR operation is applied, bit by bit. So input 48, input 48 bit, output is also 48 bit over here. Clear? So let's see how this expansion takes place. For this purpose, we have the E table. This is the E table. So some of the bits are repeated because when you make 32 and expand it to 48, clear? Yes. So how many bits will be repeated in this case? 16. 16 bits will be repeated in this case. सर हिलाने से समझ नहीं आती तो बोले समझ नहीं आ रही। 32 बिट्स है ना। Yes. मैंने यहाँ पर आपसे क्या कह दिया कि आपने इसको एक्सपेंड करना है। क्यों एक्सपेंड करना है कि मुझे इधर 48 बिट की आ रही है तो इसके बराबर करना है, तो जाहिर है कि फिर मैंने 16 बिट्स को इजाफा करना है। तो कौन से 16 बिट्स है, इधर मैं आपको थोड़ा सा शो कर दूं कि आप देखिए रिपीटिशन किधर हो रही है। ये 32 आप इधर है, इधर भी 32 है, देख रहे हो ना। Yes. ये दोबारा हो गया है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। 2 मेरा ख्याल में रिपीट नहीं हुआ, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, 4 मतलब देखिए कुछ हुए कुछ नहीं हुए। अब ये प्री डिफाइंड है, इट इज प्री डिफाइंड बिकॉज हम जब इसकी डिकम्प्रेशन करेंगे ताकि ये इजाफी बिट्स फिर हम बाद में फिर निकाल दें। समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, दिस इज डन विद दैट वन। अब ये 56 बिट्स हैं, सो 28 बिट्स हैं, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया है, लेफ्ट शिफ्ट और परम्यूटेड और कंट्रैक्शन परम्यूटेड चॉइस 2 आपने अप्लाई कर दी। नाउ दिस इज द परम्यूटेड चॉइस 2 टेबल। अब इनपुट उधर से 56 आ रहा है, ठीक है ना। आपने इसको फिक्स किसके ऊपर करना है, 48 के ऊपर फिक्स करना है। तो जाहिर है कि कुछ बिट्स को आप स्किप करोगे। समझ आ गई कि नहीं हाँ? सर यहाँ तक इवन सिर्फ 16 तक थी क्या वैल्यूज नहीं इधर था 48 सर ऊपर की बात है, ये नीचे जो वैल्यू है जो परमानेंट जो वो बाकी मैंने कहा आप खुद तलाश कर लो ना, नेट पर अवेलेबल है ना ये टेबल। तो वो मैंने कसदन नहीं किया क्योंकि हर एक चीज़ आपको तैयार मिलती है, आप फिर खुद सर्च ही नहीं करते, ठीक है। तो मतलब ये भी देख ले, ये भी इनकम्प्लीट फॉर्म है, ये भी इनकम्प्लीट फॉर्म में है। तो ये मैंने इस वजह से आपसे कहा कि आप इसको खुद से फिर वो करें, ठीक है, सही। तो अब देखिए इसमें 56 से अब 48 मैंने बना दिए, तो नंबर ऑफ बिट्स इक्वल हो गए। सो द नंबर ऑफ बिट्स 48 and you apply the exclusive OR. You know about it? अब the 48 bits are given to the substitution S boxes. These are given to the S boxes, and these 48 bits are again contracted to 32 bits. Now what are the S boxes? These are the S boxes. S1, S2, S3, S4, box 1, box 2, box 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are total 8 boxes. These are called S boxes. अब इसको क्या बोलते हैं? Substitution boxes. What? Substitution boxes. So when it is applied, the outcome of these boxes becomes 32.
वो जादू वो मदारी वाला बक्स होता है ना, चीज़ें आप ज़्यादा डाल खोले देखो गायब हो गई, 2 चीज़ें हैं 3 गायब हो गई, ठीक है। ये कमाल उसी बॉक्सेस ही की तरह से। आफ्टर दैट the 32 bits are again permuted. These are again permuted. What you mean by permutation? Huh? Change the Position. Changing the position of bits, not the values of the bits. Clear? Substitution से लगा रखी जी the substitution से लगा रखी हम कहते हैं ना ये इसका सब्स्टिट्यूट है, यानी इसका ये नुमाइंदा है। अब देखें ना इधर आपके पास कुल कितने 48 से, Yes, sir. तो इधर 32 है, तो ये तो कम हो गए ना। लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि ये 32 इस 48 का नुमाइंदा है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है। यानी इसकी बजाय अब मैंने ये लिए, अगर मेरे पास ये होगा तो वो तो नहीं रहा, तो अभी 32 रह गए। फिर एक और बात भी है कि मेरे पास जो है टोटल 64 बिट्स हैं। अब इधर देखिए मैंने एक्सपेंशन कर दी, 48 हो गए, तो 48 हो गए, तो अब 48 ये हो गए, तो 64 के बजाय अब मेरे पास कितने आ गए 80 आ गए, ठीक है। तो 80 बिट्स तो नहीं है मेरे पास, टोटल तो मेरे पास 64 बिट्स हैं, तो इसको मैं दोबारा से फिर कंप्रेस कर लेता हूँ। यानी ये एक्सपेंशन मैंने सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ दिस एमलगमेशन किया। व्हेन दिस आर एमलगमेटेड अगेन आई सब्स्टिट्यूट एंड कंप्रेस इट टू 32 बिट। तो यहाँ पर देखिए मैंने इजाफी बिट्स लगाए थे ना, Yes. वहाँ से अभी इजाफी बिट फिर खत्म हो गए, तो जो इजाफी बिट मैंने लगाए थे वो मैंने क्या कर दिए, वापस खत्म कर दिए। समझ आ गई? नाउ अगेन इट इज गिवन टू परम्यूटेशन p टेबल, अकॉर्डिंग टू द p टेबल दिस परम्यूटेशन टेक प्लेस। अभी देखें दिस इज द p टेबल, क्लियर? सो अगेन द वैल्यूज remains the same but the positions of the bits are changed. हो गया? After this the left 32 bits are XORed with the outcome of this result. Clear? And the right 32 bits becomes the left. यानी ये अक्सर मैं ऐसे कहता हूँ कि वो रस्सी नहीं बनाते, कभी देखे कि नहीं, कहना पकड़ के पकड़ दबूं कटू ना लिस्टा, ऐसे करते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. नहीं डीएनए हो गया अब उधर मेजर होता नहीं है ना, तो वो डीएनए वाले लफ्ज इस्तेमाल चेन है। तो अभी देखें ना ये राइट है और i माइनस 1 है और ये क्या l i माइनस 1। तो अभी देखें ना इधर हो गया तो इजार हो गया ना, और राइट वाला क्या हो गया, वो लेफ्ट बन गया। समझ आ गई? नो अब ये प्रोसेस कंटिन्यू है। i वैल्यू 1 तो मीन्स दिस होल इज डन फॉर रोल नंबर 1। क्लियर? नो the i is incremented by 2, so means round number 2, so it will become k2. Clear? It will become l2 2 2 2 and it will be 2 minus 1 2 minus 1 2 minus 1 2 minus 1, so 2 minus 1 is equal to 1, means that to round number 2 the input is given from round number 1, and the same identical process is repeated, and this process is repeated 16 times. अब अगर आप इस स्वरूपिंग को करोगे ना तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड सो फोर्थ। अब आखिर में 16 राउंड्स के बाद ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो अब हमने इसको
32 बिट स्वैप किया ताकि डेटा लेफ्ट का लेफ्ट पर रह जाए और राइट का राइट पर आ जाए। बात समझ आ गई कि नहीं? अब ये तमाम जब हो गया, ठीक, दिस प्रोसेस इज डन 16 टाइम्स। ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है? 16 टाइम्स। आफ्टर 16 टाइम्स अगेन inverse initial permutation is applied. Means the bit position, those were disturbed according to the inverse, their bits are moved to its original position. The bits are moved to its original positions, and the output is a 64-bit ciphertext. The output is a 64-bit ciphertext. Question. ये एंड वाला स्टेप सर जो Initial permutation क्या है ना? ये नहीं वो दूसरे चार्ट था वो दूसरे हाँ, उसको जरा दिखा कौन सा? ये वाला? ये वाला सर हाँ, ये जो L1 और R L1 है और R2 है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं। ये किधर L1 है? ये यस नहीं, ये L2 है ना? I will you become 2 ना? यस ये एक स्टेप से गुजर गया, ये राइट 32 बिट ना सर, हाँ। तो फिर दूसरे स्टेप में वो लेफ्ट का राइट पे आ जाएगा इस तरह। नहीं, बस यही प्रोसेस है ना। अब देखें ना, 2 है ना, तो अब नेक्स्ट के लिए ये I3 हो जाएगा ना? यस हाँ, तो I3 हो जाएगा, तो ये 3 - 1 होगा। तो अब ये 3 लूपिंग तो पड़ी है ना? ठीक, तो इस वजह से मैंने आपसे कहा कि ये अगर इस तरह से चैन के तौर पर आप इसको डील करोगे तो फिर आपको ज्यादा सही समझ आएगा। यस ये अगर क्लाउड एंड शैनन एल्गोरिथम है, उसका चलो मैं उसका डायग्राम थोड़ा सा आपको शो करता हूँ। अब आप इसमें देखें ना, ये आपको पता चल रहा है, ठीक है ना? इधर आप देखें, लेफ्ट राइट बन जाते हैं और राइट लेफ्ट बन जाता है, देखो ना यहाँ पे, हाँ, राउंड नंबर 1 में, और ये R4 है। समझ आए कि सेम प्रोसेस वहाँ पर भी चलता है, ठीक है ना? लेकिन वो मैंने जो डायग्राम आपको वो बना दिया है वो वाला, ठीक है? तो ये देखें, इसी की रिप्रेजेंटेशन है, लेफ्ट राइट तो बात समझ आ रही है? तो अभी देखें ना, ये लेफ्ट बन गई, राइट बन गई। अब लास्ट में जब ये आ जाता है तो लेफ्ट के जो है 32 बिट ये आप राइट पर ले आओ और राइट के लेफ्ट पर ले आओ, तो डेटा अपनी पोजीशन पर आ गया। अब फिर आप क्या करें, रिवर्स इनिशियल परम्यूटेशन, यानी इधर इनिशियल परम्यूटेशन में आपने जो डिस्टर्ब की थी पोजीशन, अब इस एनक्रिप्टेड डेटा का आप वो करो, पोजीशन चेंज करो। तो अब वैल्यूज तो चेंज है, लेकिन बिट वैल्यूज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई। समझ आए? अब एनक्रिप्टेड टेक्स्ट में आपके पास डेटा अवेलेबल है, लेकिन उनकी लोकेशंस क्या है, और वो एक्चुअल लोकेशंस पर आपको मिल जाएंगी। बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, ये जो प्रोसेस है, ये वाला, ये बॉक्स के अंदर, ये वाला जो है, ये डॉटेड बॉक्स के अंदर, ठीक है ना? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैंगलर फंक्शन। व्हाट यू मीन बाय मैंगल? वो अफगानिस्तान वाला मैंगल नहीं, अच्छा
हाँ Mix. Mingle. सही. So mangling means mixing up. ये मुझे अब भी याद है. हमारे इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर थे ना, तो कहते हैं कि जब पाकिस्तान की डिमांड हुई ना इंडिया से, तो इसके ऊपर ये था कि क्यों पाकिस्तान बने. तो उन्होंने कहा कि दीज आर द टू डिफरेंट से, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इस पर इख्तिलाफ है, क्लियर कट इख्तिलाफ है इस बात के साथ, ठीक है ना. मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन टीचर था उसने ये कह दिया कि मतलब जो मुस्लिम लीग का पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौमें हैं. इट इज़ लाइक एन ऑयल एंड वाटर, दोज कैन फ्लो टुगेदर बट कैन नेवर बी मैंगल्ड. यानी आपस में मिक्सर नहीं हो सकते, ठीक है. मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस वजह से कि अगर आप देखें तो चंद मुसलमान आए और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम की तबलीग की और कितने नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स बना दिए और उनके साथ सोसाइटीज़ बना दी, फैमिलीज बना दी. मतलब आई एम वेरी सॉरी टू स्पीक दिस, इसको थोड़ा सा मैं एक लम्हे के लिए ब्लॉक कर दूँ, ठीक है. सर तो फिर आप किस चीज़ के खिलाफ हैं? हाँ ठीक है ना. बहरहाल ये जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड द मैंगलर फंक्शन. तो कभी अक्सर पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि मेक अ मैंगलर फंक्शन डायग्राम एंड डिस्कस. ठीक. तो अगर आप देखें यहाँ से 32 बिट्स आ रहे हैं, ठीक है. अगर आप उसको देखें यहाँ पे कितने बिट्स आ रहे हैं? 32 बिट्स. आप इधर देखें, ये 32 बिट्स आ रहे हैं ना, क्या नहीं. अब यहाँ से 32 बिट्स में आके अब ये एक्सपेंशन हो रही है, तो अब ये इसके ऊपर ई टेबल अप्लाई हो गया, तो नाउ दे बिकम्स 48. अब ये 48 बन गए. तो अब हमारे पास टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 8 इस बॉक्सेस हैं. कितने? देयर आर 8 इस बॉक्सेस. अब इस 8 इस बॉक्सेस में हमने इन बिट्स को डिवाइड करना है. सो एवरी बॉक्स can adopt maximum 6 bits. Clear? So assume here is the 6. Again over here maybe it is like this 1 1 1 0 0 1. It may be like this 0 1 0 1 1 1 and so forth. Clear? Let me take S1, that this S box. Clear? And let's see what is happening with it. For this purpose, we have total 8 S boxes. Let me consider S box 1. तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे करता हूँ कि मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर दिया, ठीक है. कॉपी कर दिया और यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ ये यहाँ पर मैंने डाल दिया. सही. इट इज S1 बॉक्स. कौन सा बॉक्स है? S1 box. No. There are total 6 bits as input to this S1 box. Clear? Now what is happening with this S1 box? Looking to this box, there are 16 columns and 4 rows. There are 4 rows and 16 columns. So starting from 0 to 3 and 0 to 15. From these input, the first bit and
the last bit. They represent row. And the middle 4 bits represent column. Clear? 0, 1, 1, 0. Sahi? Now, the output, it is equal to ASCII 3 and it is equal to ASCII 6. Am I right? Yes. नहीं? हाँ या ना, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। सही है सर। बांधने छोटे सी मत ठीक है सर। नहीं करूं? अच्छा, अब आप इधर देखिए रो नंबर 3. So this is row number 3. Clear? And here is a column number 6. Clear? So what is the value at the intersection? It is 1. Clear? अब इसका जो intersection value वो क्या है? 1 है. That is equal to the boundaries 0001. So this is the output. अच्छा, अब ये वाला आप ले लें, सही? So it is S2. So I will take the S2 box. मैं उधर काफी सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं ताकि आपको बार बार आगे पीछे जाने की जरूरत ना पड़े. कंट्रोल भी ये देखिए मैंने इधर लगा दिया, सही? Now to S2, these are the 2 bits. Clear? This is for S1. Now for S2, row is 1, 1 and column is a 1, 1, 0, 0. So it is equal to 3 and 1, 1, 0 किस चीज के इक्वल है? हाँ? 12. 1, 1, 0. 1, 2, 4, 8. So 6, 4 plus 8 is equal to 12. So ये 12 के इक्वल है. No. According to this, row number 3, it is 0. So in binary it will become 0, 0, 0 and 0. अभी नहीं समझ आई? नहीं आई. ठीक है, ये इस बॉक्स नंबर 3 मैंने कॉपी किया, ये मैंने लगा दिया कंट्रोल भी. इसके लिए शाबाश आप खुद करें. ये दिस इज थर्ड लाइन क्या है सर? ठीक है, ये क्या है? क्या था? 0, 1, 0, 1, 1. इसके लिए आप खुद करें. For S3. So this is S3.
एक नंबर होगा, एक नंबर 14 तो बिल्कुल नहीं आता। हाँ? 14 तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अच्छा 1 और 11 वो 3 नीचे है सर, वो 2 है वो सर। बॉक्स है, वो थ्री वाला है। सर 3 नीचे है। 3 वाला बॉक्स। 3 नीचे है। या 3 है चलो सर। बॉक्स क्या है सर? बॉक्स नंबर 3 है। 14 है, 14। ये 1 है। यस सर। Yes, sir. 1 and 11. 1 and 14। तो 14 क्या होगा? पेपर 10। Sir, daga input the calculation comes in كذا زانو. वाले जजाना की ता वाले जगाना दे वेले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एक कोर्स होता है बीएस में, उसमें आप पढ़ते हो। फिर डिजिटल लॉजिक्स एंड डिज़ाइन है, उसमें आप पढ़ते हो। شوف ما استوى एक पेन मुझे दे। अच्छा, इधर मैं एक रिसर्च एक्टिविटी में यहाँ पर डाल देता हूँ। बेशक आप लोग घर में करें, ठीक है। इधर करते हो आपकी मर्जी है।